Hello everybody, welcome back. So I'm here with another video. So let's get started. So what does this picture depicts to you? क्या समझ में आ रहा है इस picture से? So we can see that in this picture the earth is divided into two halves and it is connected by a fuse and we can see ऊपर दो दो लोग दोनों तरफ खड़े भी हुए हैं. They are kind of communicating with each other or something like that. And in the second picture we can visualize how the people from the world are connecting with each other, are communicating with each other in a very efficient manner. Like people from Asia are connecting to the people of Europe, Europe people are connecting to the people of Africa, America, North America, South America. So this cycle goes on. So today we are going to take up the chapter globalization and the economy, and we will solve the NCERT exercise solutions up to question number 10th. Moving on, the first question here says, what do you understand by globalization? Explain in your words. So आपको यहाँ पे बताना है आप globalization से क्या समझते हो? What do you understand? So globalization basically होता क्या है? It is a process, that is a process through which the people out there, the companies, the communities, the government, the education sector connects with each other, interacts with each other from the different part of the countries. For example, if I have a friend out there in America, then I am and I am communicating with her, then that what is that doing? That is a process through which globalization is taking place, and I am communicating with her for the purpose of, as she is my friend, but something is happening ना. Like हम लोग का कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, हम लोग एक दूसरे की कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं. So this is how globalization works. Okay, so globalization is a process through which people, companies, communities, government, education system interact with each other throughout the countries. This is done to transfer each other's culture, trade, education, and much more. Moving on to the second question, it says, what was the reason for putting barriers to foreign trade? बच्चा यहाँ पे देखो, you have to understand the question first. तो यहाँ पे हमसे रीजंस पूछे जा रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्या हुआ था कि जो हमारे यहाँ बाहर देशों से ट्रेड आ रहा था, बाहर देश वाले जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उस पर बैरियर लगा दिया गया. और दूसरा पार्ट क्वेश्चन का यही कि पूछता है कि ऐसा फिर बाद में क्या हुआ कि ये बैरियर्स हटा भी दिए गए. सो जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट का आंसर क्या है? दैट द रीज़न वॉज टू make people secure out there in India, as many people and many, we can say, laborers were suffering. They were feeling oppression by the outside investment, and also the small industrialist, their profit was not as high as it should be. So in order to safeguard, to protect their profits, the government put certain kind of barriers on foreign trade and investment. अब सेकेंड पार्ट में क्या है कि वाई डिड द गवर्नमेंट विश टू रिमूव दीज बैरियर्स लेटर? ऐसा बाद में एकदम गवर्नमेंट के माइंड में क्या है, अरे चलो अब ये बैरियर्स हटा देते हैं. सो द रीज़न वॉज कि हमारी गवर्नमेंट को लगा अगर हम फॉरेन ट्रेड ही नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, तो दैट विल नॉट लीड टू अ गुड इमेज ऑफ आर कंट्री. बाहर देशों में हमारी इमेज अच्छी नहीं बन पाएगी, हमारी जो इकोनॉमी है दैट वोंट इंक्रीज. और इकोनॉमी इंक्रीज तभी होगी जब हमारी कंट्री से डिमांड्स आएंगी, प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा. जब डिमांड्स आएंगे देन ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन विल ऑल्सो increase. It won't decrease, it will obviously increase as the demands is increasing. Fine. Moving on to the third question, how would flexibility in labor law help companies? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेबर लॉज में अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं तो हमारी इंडियन कंपनीज़ को, फॉरेन कंपनीज़ को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले the companies will be able to employ the employers, laborers according to their requirements only. They will
appoint them on contractual basis rather than on regular basis. जैसे कि अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा है कि भैया तुमको 10 दिन के लिए काम करना है और तुम्हें इतने रुपए मिलेंगे, so you will be happy that he will work for 10 days according to your requirement and you will pay him or her the amount it has been fixed. but तुम्हारा क्या है, अब तुमने 1 साल के लिए सीधा रख लिया बट तुम्हारा उतना काम ही नहीं पड़ रहा, बट तुम्हें पे पूरा 1 साल का करना पड़ रहा है, तो दैट वुड अनॉय यू. सो इन ऑर्डर, अगर हमारे लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो कंपनीज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखेंगी. वो उनको रिमूव कर सकती हैं जब भी उनका मन हो. पैसे दिए, इतने दिन काम किया तुमने, अब जाओ तुम. अब इससे क्या होगा, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगा जब उनको पता है भैया यहाँ पे चीप लेबर मिल रही है, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लेबर रख पा रहे हैं, और हमारे देश में तो भैया रेगुलर बेसिस पे रखनी पड़ रही है, और यहाँ पे एवरीथिंग इज़ नॉट टू कॉस्टली एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ लैंड इज कंपेरेटिवली लो. So it reduces the expenditure of the company. Fine. Moving on to the next slide. So here the question arises for you is, when did Labor Day is celebrated? कब celebrate होता है? अभी गया है just. So fine. Labor Day is celebrated on 1st of May. Moving on to the fourth question. What are the various ways in which MNCs set up or control प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज? सबसे पहले तो यू नीड टू नो हेयर MNC की फुल फॉर्म क्या है. MNCs मीन्स मल्टी नेशनल कंपनीज, जो नेशनली ग्लोबली ही वर्क कर रही हैं, दोज आर नोन एज मल्टी नेशनल कंपनीज. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द वेरियस वेज, कौन सी डिफरेंट टेक्निक से MNC अपने आप को एक कंट्री में सेटअप कर सकती है, कैसे करेगी, और सेटअप कर भी लिया तो हाउ विल दे कंट्रोल द प्रोडक्शन आउट देयर. सो सबसे पहले हम पॉइंट्स पढ़ेंगे कि वो अपने आप को सेटअप कैसे करेगी. सबसे पहले सेटअप करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए. सो ऑब्वियसली दे विल नीड टू इन्वेस्ट वेयर एवर दे वॉन्ट टू सेटअप देयर कंपनी. दे विल कोलैबोरेट विद द लोकल कंपनीज. सपोज MNC खुली है चॉकलेट की, तो वहाँ के जो लोकल कंपनीज हैं चॉकलेट की, उनसे कोलैबोरेट कर लेंगी कि आप हमको रॉ मटेरियल देना, हम आपको चॉकलेट बना के देंगे, उसमें इतना प्रॉफिट हमारा होगा. ठीक है. अगर अब इन्होंने कोलैबोरेट कर लिया, अब इनको लगा है यहाँ पे प्रॉफिट तो भैया बहुत ज़्यादा मिल रहा है और हम क्यों इनको प्रॉफिट दें, तो वो उनको बाय भी कर सकती हैं. दे कैन बाय द लोकल कंपनीज. सेट कंपनीज इन द एरिया वेयर द लेबर इज चीप. अब वो कंपनी वहाँ सेट करेंगी जहाँ पे लेबर चीप है. वो देख के सेटअप करती हैं MNCs दैट वी विल फाइंड चीप लेबर्स. जहाँ पे लेबर एक्सपेंसिव होती है, दे वोंट सेटअप देयर कंपनी आउट देयर. अब हम रीजंस पढ़ते हैं हाउ दे विल कंट्रोल देयर प्रोडक्शन. सबसे पहले टेक्नोलॉजी. ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इज coming up with new ventures, new different areas. So obviously technology will help. अब वो keep collaborating with small ventures, small factories, small industrialist, तो ऐसे उनको help हो जाएगी. अब जब वो proper record बनाएंगे, proper record they will maintain through यूजिंग टेक्नोलॉजी ओनली. बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं मैकडोनल्ड्स का. सो मैकडोनल्ड्स बच्चों क्या इंडियन कंपनी है? नो, इट इज़ नॉट एन इंडियन कंपनी. बट क्या है, उस है तो फॉरेन की कंट्री. सेटअप पूरा इंडिया में किया हुआ है, प्रॉपर बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई हुई हैं. दे मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ सेलिंग, बाइंग द रॉ मटेरियल एंड ऑल. फाइन. Moving on to the fifth question. Why do developed countries want developing country to liberalize their trade and investment? जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, वो क्यों चाहती हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, वो उनके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे बहुत लिबरल हो जाएं, बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ ना बनाएं, बहुत ज़्यादा टैक्सेस ना लगाएं. एंड व्हाट डू यू थिंक द डेवलपिंग कंट्रीज शुड डिमांड इन रिटर्न? अब चलो ठीक है, हमने लिबरल कर दिया, हमने मान लिया, बट हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर समवन, देन यू विल ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग, राइट. सो सबसे पहले वो क्यों चाहती है लिबरलाइज हो जाए उनकी जो भी ट्रेड है, जो भी इन्वेस्टमेंट है. द रीज़न इज़ टू स्टैब्लिश इंडस्ट्रीज़ अपनी स्टैब्लिश कर पाएँ.
चीप इन्वेस्टमेंट में कर पाएँ, और लेबर, प्रोडक्शन, लैंड, सारा रॉ मटेरियल, एवरीथिंग दे विल फाइंड एट चीप रेट्स. जब ज़्यादा पॉलिसीज़ नहीं होंगी तो उनको चीप रेट पे मिलेगा. एंड इन रिजल्ट, इन सब तीनों चीज़ों को मिला के क्या रिजल्ट बने, दे विल गेन ह्यूज प्रॉफिट्स. फाइन, खूब सारा पैसा आएगा उनके पास जब वो इतना. अब जैसे लेस की कंपनी है, अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ फैक्ट्रीज लगाई हुई है, लेबर चीप मिल रही है, रॉ मटेरियल आलू पटेटो दे आर गेटिंग एट वेरी चीप रेट. बट चिप्स पहले तो 10-20 का आता था, नाउ दे आर सेलिंग इट फॉर 60-80 रुपीज़. एंड ऑल्सो उसमें एयर ही मैक्सिमम भरी होती है. सो और उनको प्रॉफिट उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है. फाइन. अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको डेवलप्ड कंट्रीज से क्या डिमांड करना चाहिए, सबसे पहले उनके लेबर्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए. फाइन. और जो भी एक्सेसिव ट्रेड फेंस बनाए हैं उन्होंने अपनी कंट्री में हमारे इम्पोर्ट्स के लिए, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी, जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस नहीं होने चाहिए. एक ट्रेड फेंस उन्होंने जो क्रिएट किया हुआ है वो रिमूव हो जाना चाहिए. गिविंग सम परसेंटेज ऑफ शेयर्स, जो भी उनको प्रॉफिट हो रहा है उनको कुछ परसेंटेज हमें भी, हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी देना चाहिए. और द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट शुड केप्ट इन माइंड. अब you people are aware of COVID-19, so we can see how people are suffering from oxygen and all, and the reason behind it, we have only done the deforestation. पेड़ वेड़ तुमने ही काटे हैं बच्चों, हम लोग ने ही सब ने मिल के काटे हैं. सो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ अपनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ सेट कर रही हैं, हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें हार्म नहीं होना चाहिए. बट ऐसा होता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. वी कैन सी द raw materials and the explosive items throwing out there in the seas and rivers, so it harms our country, our environment. Fine. Moving on to the sixth question, the impact of globalization has not been uniform. जो globalization का impact है वो हर जगह सेम नहीं रहा है. हमको ये एक्सप्लेन करना, और ये कैसे हुआ है. सबको ग्लोबलाइज्ड गुड्स नहीं मिलते, एवरीवन कांट एक्सपोर्ट इट. डेवलप्ड कंट्रीज ओनली गेन प्रॉफिट. जो डेवलपिंग है उनको कुछ मिलता ही नहीं है, जो डेवलप्ड है वही सारा प्रॉफिट ले जाती हैं. इसकी वजह से इंग्लिश हैज़ बिकम द सिंबल ऑफ एजुकेटेड पर्सन. अब क्या होता है, कोई हिंदी बोल रहा है तो यू से अरे ये पढ़ा लिखा नहीं है, और जो इंग्लिश बोल रहा है अरे ये तो बहुत पढ़ा लिखा है. भले दिमाग हिंदी वाले के पास ज़्यादा हो, बट पीपल कंसिडर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल टू बी मोर इंटेलेक्ट. मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, चीप लेबर्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज. वो डेवलपिंग कंट्रीज से चीप लेबर ले लेते हैं. स्मॉल इंडस्ट्रीज इग्नोर हो जाती हैं. पीपल लीव देयर ओन नेशन. वी पीपल, मैनी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स आर गोइंग अब्रॉड टू स्टडी. तो इसकी वजह से, और एवरी वन डजंट गेट दिस चांस टू मूव अब्रॉड एंड स्टडी. दिस हैज़ लेड टू अनहेल्दी कॉम्पिटिशन. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनहेल्दी कॉम्पिटिशन हो गया है. Seventh question says how liberation of trade and investment policies help globalization process. अब लिबरलाइज हो गया है ट्रेड, उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ जो हैं, इतना ज़्यादा पॉलिसीज़, इतना ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं लगाया गया है. तो उसने ग्लोबलाइजेशन में कैसे हेल्प किया है. एक तो ट्रेड बैरियर्स हट गए, बहुत ज़्यादा टैक्सेस नहीं, कुछ नहीं. मोर पावर इन द हैंड ऑफ बिजनेसमैन. अब यहाँ पे गवर्नमेंट की जगह बिजनेसमैन के हाथ में ज़्यादा पावर है कि वो क्या इम्पोर्ट करना चाह रहा है अपने लिए और क्या एक्सपोर्ट करेगा. इसकी वजह से द कॉम्पिटिशन इज इंक्रीज. कॉम्पिटिशन हैज़ लीड टू प्रोडक्शन इंक्रीज. और प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, एवरी वन इज़ कॉम्पिटिटिंग अमंग देमसेल्व्स, तो प्राइसेस चीप हो गए. फॉर एग्जाम्पल, घर के पास दो दुकानें हैं. फाइन. वन इज सेलिंग द टेबल फॉर 100 रुपीज़, वेयर एज द अनदर वन इज सेलिंग इट फॉर 80 रुपीज़. तो तुम लोग कहाँ से लोगे टेबल, बताओ. यू विल डेफिनेटली टेक द टेबल फ्रॉम द पर्सन हु इज सेलिंग इट फॉर ₹80. फिर लेस रिस्ट्रिक्शंस बाय गवर्नमेंट. रिस्ट्रिक्शंस तो है ही नहीं ज़्यादा. Moving on to the eighth question, how does foreign trade lead to integration of market across countries? Explain with an example other than those given in books. अब जो book में example दिया है that you don't have to take, अपना खुद का example बनाओ बच्चों.
तो हाउ डज फॉरेन ट्रेड लेड टू इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेट कैसे हुआ है, फॉरेन ट्रेड आ रहा है तो उससे इंटीग्रेशन कैसे हुआ है. सेलर कैन सेल हिज और हर प्रोडक्ट, अपनी कंट्री में भी जो सेल करना चाह रहा है वो कर सकता है और बाहर देश में भी जाके या उसको एक्सपोर्ट करके सेल आउट कर सकता है. वैरायटी बहुत ज़्यादा है, यू कैन चूज अमंग, तुम्हें ये वाला पेंसिल बॉक्स लेना है या दूसरे वाला पेंसिल बॉक्स लेना है जिसमें कार बनी है. मूविंग ऑन, डिमांड्स इंक्रीज हो रही हैं, जैसे आपकी डिमांड्स इंक्रीज हो रही हैं कि हमें ये वाली स्टेशनरी लेनी है, ये वाला यूनिकॉर्न आइटम लेना है. ये बच्चों कहीं भी इंडिया में नहीं बन रहा. ऑल दोज इन यूनिकॉर्न मिनियंस, ऑल दीज थिंग्स आर गेटिंग मेड in foreign countries or made by foreign countries that are established in India. And this has definitely lead to competition has lead to increase of quality but decrease of price. अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है मैगी और यिप्पी का. तो याद है 2015 में मैगी पे बैन लगा था बिकॉज उसमें क्या हुआ था, लीड जो लेड आइटम है, जो लेड है वो बहुत ज़्यादा, दैट वाज फाउंड इन एक्सेसिव अमाउंट. अब मैगी इज एन इंटरनेशनल कंपनी ऑफ स्विट्जरलैंड, वो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है और ये भी एक इंडियन नूडल कंपनी है. बट आप खाते कौन सी ज़्यादा हो, यू डेफिनेटली ईट द स्विट्जरलैंड कंपनी दैट इज़ मैगी. तो जब मैगी पे बैन लगा था तो एकदम से यिप्पी का बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रहा था. दैट इज़ टू इंक्रीज इट्स डिमांड इन द मार्केट, टू प्रमोट इट्स सेल्फ इन द मार्केट. उसी के बाद से यिप्पी थोड़ी बहुत फेमस हुई. बट अगेन जब मैगी पे ban hata, then again people have started eating Maggi in an immense form. So you should also take care of the things कि हमें wisely items choose करने चाहिए. जब उसमें lead का इतना ज़्यादा excessive amount मिला है, then you should take precautions. Moving on to the 9th question, globalization will continue in the future. Obviously एक बार globalization शुरू हो गया, अब there are no chances that globalization will end any time. So can you imagine the world would be like 20 years from now? अब 20 years के बाद क्या तुम इमेजिन करते हो जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा होगा. आज इतनी चीज़ें हैं तो कल को 20 years के बाद क्या हो रहा होगा. ऑब्वियसली इंक्रीज इन वेराइटी होगी, कंपटीशन इंक्रीज होगा, एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी होगी, प्लेसमेंट्स इन अदर कंट्रीज होगा. जैसे बच्चों का फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं तो लेटर प्लेसमेंट्स भी हमारे स्कूल कॉलेजेस कराएंगे, अभी भी कराते हैं. दो क्वालिटी ऑफ गुड्स विल इंक्रीज, ऑब्वियसली लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो एवरी वन नाउ ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी एजुकेटेड. सो मोर ओवर लिटरेसी रेट हमारा बढ़ेगा. Great political support between different nations. Yes, we can see that we are getting the raw materials for vaccine from America. Also, South Africa is supporting us. So we can see अभी से इतना ज़्यादा cooperation है different countries में, तो कल को globalization बढ़ेगा तो how immensely it will be increasing. And definitely it will lead to more economic growth. Economic growth हमारी country की बढ़ेगी. Moving on to the 10th question. Supposing you find two people arguing, one is saying globalization has hurt our country's development. एक कह रहा है कि जो globalization है उससे हमारी country का development रुका है, कम हुआ है. The other is telling globalization is helping India to develop. एक बता रहा है कि इंडिया का डेवलपमेंट कम हो रहा है और एक बता रहा है इंडिया का डेवलपमेंट बढ़ रहा है. हाउ वुड यू रिस्पॉन्स टू दीज आर्ग्यूमेंट्स. अगर आप उस जगह हो, दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो तुम कैसे रिस्पॉन्स करोगे. देखो, एवरी थिंग हैज़ टू साइड्स ऑफ द कॉइन. एक तरफ अच्छाई भी होती है, एक तरफ बुराई भी होती है. वन साइड कंटेन्स गुड थिंग्स एंड अदर साइड कंटेन्स द बैड थिंग्स. तो यू विल डेफिनेटली टेल दोज टू पीपल कि भैया ऐसा है, वी हैव द एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज, देयर आर प्रोज एज वेल एज कॉन्स. The thing is we have to accept all these things and we should more focus on advantages and we should try to overcome the disadvantages. Now let's see advantage क्या है, disadvantage क्या है. advantage क्या है, हमारा cultural acceptance हो रहा है. अब foreign से कोई आ रहा है, हम उसको कितने अच्छे से treat करते हैं. obviously we people go to other countries, they are also accepting us, they also try to learn our culture, they also try to say namaste. मूविंग ऑन, इंक्रीज इकोनॉमी हो रही है ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन से. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, अब फैक्ट्रीज सेटअप हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ऑब्वियसली.
एंड अदर कंट्रीज़ में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई है, मोर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है, एजुकेशन वर्ल्ड वाइड है, घर बैठे भी यू कैन enroll yourself in any of the course and take online classes. अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अनएथिकल कंपटीशन है कि you don't consider people who speaks Hindi while you consider people who speaks in English. Foster inequality, obviously क्या हो रहा है कि due to globalization poor people are suffering but the rich people are growing immensely. डिस्क्रिप्शन बेसिस ऑफ स्टेटस, ऑब्वियसली पैसों के बेसिस पे डिस्क्रिप्शन कर देते हो. नीड टू एफ्लुएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में एफ्लुएंट होना चाहिए अगर तुम ग्लोबलाइज्ड कहलाना चाहते हो तो. एंड लेस प्रॉफिट टू द डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, हमें उतना प्रॉफिट ही नहीं मिलता जितना वो हमारी कंट्री से लेके चले जाते हैं. सो यू हैव टू tackle the situation and talk about both the things that is there about globalization, that is pros and cons. Hopefully this video is helpful for you all and you will learn how to solve these questions and write down about these questions. Thank you.